حضرت مولانا اسجد صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اشک فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ ونعوذ بھولیں۔ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین الی آخر الآیات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، نوجوان ساتھیوں، پچھلے 2-2.5 دن سے ہم لوگ دین کی مختلف باتیں مختلف علماء کی زبانی مختلف انداز میں سن رہے ہیں۔ عمل کے لیے، رہنمائی کے لیے وہی باتیں کافی ہیں۔ یہ آخری مجلس ہے، اس میں کچھ ضروری باتیں اپنے لیے آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیچ میں تھوڑی سی جگہیں خالی ہیں، پر کر لیجئے تاکہ پیچھے والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے جگہ ہو۔ ادھر کونے میں بھی یہاں جگہ نظر آ رہی، ادھر بھی آگے ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سب کا مقصد ہے دین سیکھنا، دین سمجھنا۔ آج ایک سوال حل کر کے آپ جائیں کہ دین کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں دین؟ ایک سوال ہے۔ آج کی پوری گفتگو میں بس یہی جواب دینا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس میں یہی پہلو اجاگر کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، اہل ایمان کی تربیت کی گئی ہے کہ وہ سمجھیں کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ تو ایک سوال اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ دین کیا ہوتا ہے۔ ہم سب کیا محنت کر رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، دین پر آنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے محنت ہو رہی ہے، مختلف انداز سے ہو رہی ہے، مدارس کی لائن سے، مکاتب کی لائن سے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے، اور بھی بہت سے طریقے ہیں، سب کی کوشش دین۔ لیکن دین کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ بس 2 لفظ بول رہا ہوں، پوری تقریر کا خلاصہ ان 2 لفظوں کے ارد گرد گھومے گا۔ دین کی اصل اور بنیاد، دین کا خلاصہ ہے تسلیم اور رضا۔ تسلیم و رضا۔ تسلیم کے معنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا، رضا کے معنی ہے خوش ہونا۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب ادھر سے جو حکم ملے خوشی خوشی اس کو قبول کر لینا، اس کا نام دین ہے۔ جو آیت میں پڑھی ہے پہلے اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور مفہوم ذہن میں لائیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے ہیں تو آپ کا اور مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا۔ مکہ المکرمہ میں آپ کا قبلہ تھا کعبہ شریف، ادھر رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ آج ہم اور آپ بھی ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بیت اللہ نبی کا مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ جب مدینہ آ گئے تو اب حکم آیا کہ اے پیغمبر، آپ اور آپ کے ساتھی اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں، بلکہ اپنا قبلہ آپ بیت المقدس کو بنا لیں، ملک شام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ بیت المقدس، بیت المقدس دونوں طرف بولا جاتا ہے۔ تو آپ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کریں۔ یہ بیت المقدس قبلہ تھا اہل کتاب کا،
नसारा का। फिर 16-17 महीने के बाद अल्लाह की तरफ से दूसरा हुक्म आया, फ़वल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ए नबी, अब बात पूरी हो गई, अपना रुख आप फिर बैतुल्लाह की तरफ कर लीजिए। तब्दीली 2 मरतबा हो गई, बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस की तरफ, फिर बैतुल मक़दिस से वापस बैतुल्लाह की तरफ। ये जो चेंजिंग हुई, तब्दीली हुई क़िबले की, इसको कहते हैं तहवील क़िबला। जब ये तहवील क़िबला हो रही है तो मक्का के मुशरिकों, ऐसे ही मुनाफिकों, मदीने के जो रहने वाले थे, यहूद को चेमी गोइयाँ करने का मौका मिला। उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि कैसा नबी है, कभी इधर रुख करवाता है, कभी इसको क़िबला बताता है। अपने जद्दी क़िबले को भी इन्होंने छोड़ दिया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला है। इस तरह का बड़ा शोर उन्होंने मचाया। उस मौके पर यह आयत उतर रही है, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। मशरिक़ और मग़रिब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ लेना ही कोई दीन थोड़ी है। इस पस मंज़र में गोया उन यहूद, उन मुशरिकों और मुनाफिकों के नज़दीक असल दीन, असल नेकी ये थी कि क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ लें। तो इस पस मंज़र में कहा जा रहा है कोई यही नेकी रह गई कि क़िबले की तरफ रुख करो या बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करो। नेकी तो आगे भी बहुत है। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, ये ईमानियात का बयान है। फिर आगे चल कर आया, व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब, ये अखलाक़ियात का बयान हुआ, ये फ़राइज़ का बयान नहीं था। व आतल आगे चल कर आ रहा, व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात, ये इबादात का बयान हो गया। वल मूफ़ून बिअहदिहिम, इसमें दीगर मामलात का बयान हो गया। तो गोया कुरान ने समझाया कि सिर्फ नेकी यही नहीं है कि अपना रुख क़िबला की तरफ करें या बैतुल मक़दिस की तरफ करें, मशरिक़ और मग़रिब की तरफ करें। इनमें क्या रखा है? असल दीन तो अल्लाह की इताअत का नाम है। अगर वो यूँ कहे कि मशरिक़ की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो तो उधर नमाज़ पढ़ना दीन है, और अगर वो कहे कि मग़रिब की तरफ रुख करो तो उधर रुख करके नमाज़ पढ़ना दीन है। न बैतुल्लाह में कुछ रखा है, न बैतुल मुक़द्दस में कुछ रखा है। असल दीन रखा है अल्लाह की फर्माबरदारी में। अब इसको थोड़ा खोलो, मिसालें लीजिए कि जिस तरह नमाज पढ़ना दीन है, इसलिए वो अल्लाह का हुक्म है। इस्लाम में बड़ी अहम इबादत नमाज है। अगर नमाज पढ़ना इबादत और दीन है इसलिए कि वो अल्लाह का हुक्म है, तो कभी नमाज न पढ़ना भी दीन है, इसलिए वो भी अल्लाह का हुक्म है। आपको अजीब से लगेंगे ये जुमले, नमाज पढ़ना दीन है। क्यों दीन है? इसलिए कि वो अल्लाह का हुक्म है। कभी नमाज न पढ़ना भी दीन है, इसलिए उस वक्त वही अल्लाह का हुक्म है। तो न नमाज पढ़ना दीन है, न नमाज न पढ़ना दीन है। अगर दीन है तो दोनों है। क्यों? अल्लाह का हुक्म दोनों तरफ पूरा होगा। ये मश्क करवाई गई अहले ईमान कि नमाज में कुछ नहीं रखा है, हमारे हुक्म की इताअत में रखा हुआ है। अगर हम यूँ कहें कि नमाज नहीं पढ़नी है तो वही दीन है। फिर मिसाल लो, सूरज तुलू हो रहा है, सूरज बीच आसमान पर है, सूरज डूब रहा है, क्या हुक्म है अल्लाह का? नमाज नहीं पढ़ सकते। अब इस वक्त नमाज न पढ़ना ही दीन है। चाहे जितना तबीयत मचले आपकी, कितना ही शौक़ हो आपको, भाई मुझे तो 2 रकात पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन इस वक्त नमाज पढ़ना गुनाह है, नमाज न पढ़ना ही दीन है, इसलिए इस वक्त अब उसका यही हुक्म है। तो उसने यही समझाया मुसलमानों को कि मेरा मानने का नाम दीन है, नमाज पढ़ने का नाम दीन नहीं है। नमाज अगर दीन है तो इसलिए है कि उसमें तुम मेरी बात मान रहे हो। इसी तरह अगर मैं कह दूँ कि नमाज नहीं पढ़नी है तो वो भी दीन है। फिर ऐसी ही हालत है हैज़ में। हैज़ के ज़माने में औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती, पाबंदी है। उन दिनों में नमाज से रुकना औरतों के लिए दीन है। अगर नमाज पढ़ेंगी तो गुनहगार। और मिसाल लो तीसरी, हुज्जाज किराम हज करने के लिए पहुंचते हैं मक्कतुल मुकर्रमा, लाखों का सरमाया खर्च करते हैं, बड़ी अक़ीदत से जाते हैं, लेकिन अराफात के मैदान में पूछो जिन्होंने हज किया है, अराफात के मैदान में खूब गिरिया जारी की है, अल्लाह से दुआएं की हैं। हुक्म ये है कि जैसे ही सूरज डूब जाए मगरिब यहाँ नहीं पढ़ोगे, मगरिब पढ़े बगैर सीधा रवाना हो जाओ मुज़दलिफ़ा के लिए। अब चाहे रात को 2 बजे पहुँचो, चाहे 3 बजे पहुँचो, नमाज क़ज़ा होती है तो हो जाने दो, आज क़ज़ा करना ही दीन है। मश्क करवाएगी, पूछो उलमा से पूछो, यही मसला है।
9 ذی-الحجہ کو حاجی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ عرفات پہنچتے ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ دیکھو کہ عرفات پہنچیں گے، زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں، جو اہم رکن ہے حج کا۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ عرفہ یہی اصل حج ہے، یعنی اہم رکن ہے۔ کیا حکم ہے کہ جیسے ہی زوال ہو جائے، ظہر کا وقت ہو جائے، بڑی مسجد میں امیر الحج نماز پڑھائے گا بڑی جماعت کے ساتھ، ظہر پڑھو، ظہر کا سلام پھرتے ہی کوئی سنت نہیں، دوبارہ تکبیر ہوگی، عصر پڑھو۔ ابھی ٹائم بھی نہیں ہوا، بے ٹائم آج عصر پڑھنا یہی دین ہے۔ کوئی کہے نہیں صاحب مجھے تو ابھی عصر کا ٹائم ہونے میں 2 گھنٹہ ہے، میں تو جب پڑھوں گا، تو بے دینی ہے۔ وقت سے پہلے پڑھو، اللہ نے کہا ہے، یہی دین بن گیا۔ اور مغرب میں کیا کروا دیا؟ قضا کروا دی۔ خود نبی کی بھی نماز رات کو 12 بجے ہو رہی ہے مزدلفہ میں جا کے مغرب کی۔ تو جب زوال کے بعد سے حاجی عرفات میں رہتے ہیں، مغرب تک دعائیں مانگتے ہیں، سورج ڈوب گیا تو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے 2-3 رکعت مغرب کی پڑھ کے پھر چلے جاؤ مزدلفہ، لیکن حکم کیا ہے؟ یہاں مغرب پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عرفات میں کوئی مغرب نہیں پڑھے گا، مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ پہنچو، کوئی 2 گھنٹے پہنچے گا، کوئی 4 گھنٹے پہنچے گا۔ اب تو دیر ہوتی ہے، بسیں بہت ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو رات کو 2 بجے بھی پہنچتے ہیں، تبھی جا کے وہاں مغرب پڑھو، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کرو۔ یہ مشق کروائی گئی۔ سال میں ایک نماز آتی ہے بقرعید کی، جو کبھی نہیں پڑھتے وہ عید بقرعید کی پڑھتے ہیں، جو کبھی نہیں پڑھتے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے، وہ کم سے کم عید بقرعید کی پڑھتے ہیں۔ لیکن پوچھو ان علماء سے جو حج کرنے جاتے ہیں بقرعید کی نماز وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہیں نہیں پڑھتے۔ آج حاجیوں کے لیے بقرعید کی نماز نہ پڑھنا ہی دین ہے، ان کے اوپر سے واجب ختم ہو گئے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اصل دین اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ نہ نماز کوئی دین ہے، نہ روزہ کوئی دین ہے، نہ یہ معمولات کوئی دین ہے، نہ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اصل تو منشأ خداوندی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ دین۔ پورے دین کا آپ نچوڑ نکالتے چلے جائیں گے، یہی ہزاروں مثال آپ کو ملیں گی۔ ایک روزے کو لیجیے، روزہ ایک اہم عبادت ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا اجر و ثواب متعین فرمایا ہے، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب کی کوئی حد نہیں رکھی، کوئی مقدار متعین نہیں کی، بلکہ یوں فرما دیا میں خود ہی روزہ دار کو اس کے روزے کا بدلہ دوں گا۔ اس کو پھیلا کر اگر سمجھے تو یوں سمجھو کہ ہمارے اوپر جو فرشتے متعین ہیں، ہمارے ریکارڈ جو تیار کر رہے ہیں، وہ ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ رجسٹر تیار کریں اور لکھیں کہ بندے نے آج قرآن کا 1 پارہ پڑھا، اخلاص اتنا تھا، اتنا وزن بن گیا، ان کا اجر ثواب اتنا ہو گیا۔ وہ پورا مکمل رجسٹر تیار کر رہے ہیں۔ بندے نے نماز پڑھی تھی، اخلاص تھا کہ نہیں تھا، اگر تھا تو کتنی ڈگری اخلاص تھا، اس نماز کا وزن کتنا بن رہا ہے، اصل ثواب اتنا بنتا ہے، اللہ اپنے فضل سے 10 گنا دے گا تو اتنا بن رہا ہے، جمع گھٹا سب کر کے وہ رجسٹر تیار کرتے ہیں۔ حج کیا ہے، فلاں کیا ہے، سب تیار ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں روزے کا خانہ ہے، روزہ رکھا، 1 روزہ رکھا، 10 رکھے، 30 رکھے، رمضان کے روزے رکھے، لیکن ان کا جمع کتنا ہو گیا، ٹوٹل کتنا ہو گیا، ان کا اجر ثواب کتنا بنا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، کیا لکھیں، کتنا بڑھائیں۔ اللہ کے حضور پہنچے، اے اللہ اس کا حساب ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، روزے کا بدلہ کتنا لکھیں؟ اللہ کا تمہارا کام نہیں، یہ جو خانہ ہے جس میں لکھنا چاہیے تھے کہ روزے کا ثواب کتنا بنتا ہے، یہاں لکھو الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، میں اللہ ہی خود اس کا بدلہ دوں گا، تمہیں بھی پتہ نہیں کتنا دوں گا۔ یہ مطلب ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض محدثین نے اس کو پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، کوئی اور غیر چیز نہیں ملے گی، اللہ خود اس بندے کو مل جائے گا۔ اللہ ہی مل گیا تو پھر کسر ہی کیا رہے گی؟ اتنی عظیم الشان عبادت، کتنا بڑا بدلہ ہے، اجر، کچھ کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں تھوڑا سا قریب کرنے کے لیے، فہم کے نزدیک لانے کے لیے یوں فرمایا گیا للصائم فرحتان
फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही। एक इशारा दिया गया, लेकिन वहाँ भी इंतहा नहीं है। फरमाया गया रोज़ादार के लिए दो मसरत हैं, दो खुशियाँ हैं। एक खुशी तो इफ्तार के वक्त, वो फितरी खुशी है, दिन भर का प्यासा है, भूखा है, दस्तरखान लगा हुआ है, नियामतों को देखकर तबीयत मचल रही है, उधर मुअज्जिन का अल्लाहु अकबर और हाथ उठा कर मुँह में ले गया, ये खुशी है, फितरत। ये तो दुनियावी फ़रहत हो गई। और दूसरी फ़रहत है इंदा लिक़ाइ रब्बिही, जब रोज़ादार अपने रब से मिलेगा। वो लिक़ा, उस वक्त जो मुलाकात होगी, फ़रहत होगी, वो किस चीज़ से कि अजर व सवाब बंदे की दिमाग की रसाई से भी ज़्यादा मिल रहा होगा, इसलिए खुश होगा। इतना देगा कि बंदे ने सोचा भी नहीं होगा। रोज़ा इतनी अहम इबादत है। जब इतनी अहम इबादत है, लेकिन कुछ मौके ऐसे आते हैं कि वहाँ रोज़ा रखने से मना किया गया है, तो अब रोज़ा न रखना ही दीन है। एक तो मिसाल मशहूर है, थोड़ा सा पानी भरो। एक मिसाल तो मशहूर है, अय्याम ईदैन में यानी बकरा ईद के दिन, ईद उल फितर के दिन, फिर अय्याम तशरीक़ आते हैं, उनमें रोज़ा रखना हराम। अब अगर उन दिनों में कोई रोज़ा रखता है, गुनाह करता है। खूब तबीयत मचले, तबीयत चाहे, लेकिन रोज़ा नहीं रखता है, इसलिए कि उस वक्त अल्लाह का यही हुक्म है, यही दीन है। तो रोज़ा रखना न दीन, रोज़ा रखना भी दीन नहीं। अगर दीन है तो इसलिए कि वो अल्लाह का हुक्म है। और कभी रोज़ा न रखने का हुक्म होता है तो उस वक्त रोज़ा न रखना ही दीन। इसी तरह सफ़र में, आप सफ़र में जा रहे हैं, सफ़र शरई है, उलमा के जो अक़वाल हैं 77, 77, 78 किलोमीटर पर आदमी मुसाफिर होता है, जो भी अक़वाल हैं, अगर इतना लंबा सफ़र आदमी कर रहा है तो शरीयत का हुक्म ये है कि रोज़ा छोड़ सकता है, बाद में क़ज़ा कर लेगा। रमज़ान का रोज़ा है, सफ़र में जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बम्बई जा रहा है, छोड़ सकता है, अगले दिनों में क़ज़ा कर लेगा, ये रुख़सत है। और अगर हिम्मत करके रोज़ा रख ले, ये अज़ीमत है। हिम्मत करके रोज़ा रख ले तो अज़ीमत है, छोड़ दे तो रुख़सत है। दोनों पहलू शरीयत में रखें। अब एक आदमी सफ़र में जा रहा है और उसने रोज़ा रख लिया, जबकि गुंजाइश थी रोज़ा न रखने की भी, लेकिन रोज़ा रखकर ख़ुद भी परेशान हुआ, नाक़ाबिल बर्दाश्त बोझ पड़ा तबीयत पर, बीमार हो गया, अपने दूसरे रफ़ीक़ सफ़र के लिए ज़हमत बन गया, तकलीफ़ बन गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा रोज़ा रखना कोई दीन थोड़ी है। ऐसा रोज़ा रखना कोई दीन थोड़ी है। एक वाक़या पेश आया था, सहाबा किराम का एक छोटा सा काफ़िला रवाना हुआ, जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बज़ात ख़ुद मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। फिर काफ़िला किसी जगह जाकर रुका, गर्मी का मौसम था, लू चल रही थी। तो कुछ लोग तो सवारियों से उतरे और गिर कर पड़ गए, साया लिया और बस लेट गए, पड़ गए, अपने ऊपर पानी के छींटे डाल रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने रोज़ा रखा था और रोज़ा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अब लोग उनको पर झुके हुए हैं, कोई पंखा झूल रहा है, कोई हवा कर रहा है, कोई पानी के छींटे मार रहा है, और दूसरे लोग ऊँटों पर से सामान उतार रहे हैं, ऊँटों को बांध रहे हैं, उनके सामान को भी उतार रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा भीड़ सी लगी हुई है, क्या बात है, क्या तमाशा हो रहा, पूछा क्या हो रहा भाई? मुझे कुछ सूफी सल्लेट्स हैं, कुछ सूफी सल्लेट्स हैं जिन्होंने रोज़ा रख लिया था, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, लोग उनकी खिदमत कर रहे हैं। तब आपने फरमाया, लैसा मिनल बिर्रि सियामु फिस सफ़र, लैसा मिनल बिर्रि अस्सियामु फिस सफ़र। और जो उलमा हैं उनके लतीफ़े के लिए अर्ज़ करूँ, मिश्क शरजामी में पढ़ा होगा, लाम के बजाय मीम, लैसा मिनम बिर्रिम सियामिन फिम सफ़र, यही वो हदीस है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, रोज़ा इस तरह सफ़र में रखना कोई नेकी का काम थोड़ी है। अल्लाह ने रुख़सत का मौका दिया था, उस रुख़सत पर अमल करना भी दीन है। फिर हदीस बयान फरमाई, इन्नल्लाह युहिब्बु अन तु'ता रुख़सुहु कमा युहिब्बु अन तु'ता अज़ाइमुहु। अल्लाह रुख़सत पर अमल करने को भी ऐसे ही पसंद करता है जैसे अज़ीमत पर अमल करने को पसंद करता है। अगर हिम्मत है तो रोज़ा रखो, वो भी अल्लाह को पसंद है। हिम्मत नहीं है, रोज़ा छोड़ दो, ये भी अल्लाह को पसंद है। क्या मालूम हो रहा है? वही कि असल इताअत, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, ये दीन है। फ़तह मक्का के लिए आप रवाना हुए, 10,000 का लश्कर सहाबा का आपके साथ है, रमज़ान का महीना है। अब आपने भी रोज़े रखे हैं, सहाबा भी रोज़े रखते हुए जा रहे हैं, सब चल रहे हैं। जब मक्कतुल मुकर्रमा
2-3 मंजिल दूर रह गया कि अब 1.5-2 दिन में हम पहुंच जाएंगे और हो सकता है वहां जाकर जंग की नौबत आ जाए। सहाबा रोज़ा रखते हुए चल रहे हैं, इसलिए कि नबी रोज़ा रखते हैं। तो अकाबिर सहाबा ने राय रखी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब रोज़ा रखना बहुत मुनासिब नहीं है, मुजाहिदीन कमज़ोर हो जाएंगे। अगर जंग की नौबत आई तो कैसे तलवार चलाएंगे, रोज़ा रख रख के कमज़ोर हो रहे हैं। बेहतर ही है कि अब रोज़ा न रखा जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये राय पसंद आई और असर के बाद आपने प्याले में पानी मंगवाया और सबके सामने खड़े होकर नोश फरमाया, ये दिखाने के लिए कि अब रोज़ा नहीं है। अगर मैंने पहले से रखा हुआ तो वो भी मैंने तोड़ दिया है, या पी कर ये दिखाया कि मैं खुद रोज़े से नहीं हूँ। और फिर ऐलान फरमाया अब 2 दिन में 2.5 दिन में हम मक्का पहुँच जाएंगे, जिहाद की नौबत आ सकती है, इसलिए अब कोई साथी रोज़ा न रखे। ऐलान हो गया। अगले दिन कुछ फिर सूफी सल्लेटों ने रोज़ा रख लिया। सूफी सल्लेट किसको कहता हूँ मैं मालूम है? बेवकूफ़ दीनदार। दीनदार तो है लेकिन बेवकूफ़ है, समझता नहीं किस वक्त अल्लाह की क्या मंशा है, उसको कहता हूँ सूफी सल्लेट। जो अपना आपको बहुत दीनदार समझते हैं लेकिन कम अकल होता है। दीनदार अल्लाह के नज़दीक वो महबूब है जो अकल वाला हो, जो अकल वाला हो वो दीनदार अल्लाह को महबूब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया बिमा बुइस्त, अल्लाह के नबी आप क्या लेकर भेजे गए हैं? तो आपने फरमाया मुझे अकल लेकर भेजा गया। यानी दीन पर अमल, अकल की रोशनी। किस वक्त अल्लाह का क्या हुक्म है, यही असल दीन, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगले दिन फिर लोगों ने रोज़ा रखा। तो आपके इल्म में जब ये बात आई कि कुछ लोगों ने अभी रोज़ा फिर रखा है तो आप गज़बनाक हुए, गुस्सा हुए और फरमाया उलाइकल उसात, उलाइकल उसात, ये लोग सख्त नाफरमान, ये लोग सख्त नाफरमान, यानी रोज़ा रख कर नाफरमान। क्यों? इन्होंने मंशा को नहीं समझा। जब अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया कि अब रोज़ा नहीं रखना है, जिहाद की नौबत आ सकती है, अब भी सूफी जी रोज़ा रख रहा है, ये कम अकली है, तो आप नाराज़ हुआ और फरमाया उलाइकल उसात, ये सख्त नाफरमान लोग। आपका चेहरा सुर्ख हो गया। तो ये चंद मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ करीबुल फहम करने के लिए, एक बात को आप समझें। आ जाओ इफ्तार के मामले पे। रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, सुबह सादिक से खाने पीने, बीवी से मुलाकात की पाबंदी, लेकिन हुक्म क्या है? जैसे ही इफ्तार का वक्त हो फ़ौरन रोज़ा इफ्तार करो। अल्लाह को ये बात पसंद है। ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फितर, ये हदीस कुदसी है। ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन, लोग खैर पर कायम रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। और हमारे सूफी सल्लेट 2 मिनट और रुक जाओ, रुक जाओ, 3 मिनट और रुक जाओ। अब ये खैर की तरफ नहीं शर की तरफ जा रहे हैं। क्यों? गुरूब होते ही जैसे यकीन हो गया, हमें ये जाहिर करना था ऐ अल्लाह हम तेरे हुक्म के ताबे हैं, तूने हमको मना किया, खाने पीने से रुके हुए थे, जैसे ही तेरी तरफ से इजाज़त मिली हम तो मोहताज है खाने के, फ़ौरन शुरू कर दिया। अल्लाह को ये अदब पसंद है, ये मेरी मान रहा है। और अपनी तरफ से 2, 2.5, 3 मिनट अगर बढ़ा रहा है तो ये अपने नफ्स का दखल दे रहा है, अपना शौक़ पूरा कर रहा है। अल्लाह के हुक्म में ताख़ीर हो रही, अल्लाह को बंदा पसंद नहीं। और तुम को भाई मुल्ला जिनकी टिक ना लगे, देख कितने जल्दी रोज़ा खोल रहे, कह रहे हो नहीं, तुम हमाकत कर रहे हो। दीन को ये समझेंगे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिनकी एक एक हदीस पर, एक एक आयत पर नज़र है, दीन की बारीकियों को वो समझेंगे। बुरा मत मानना, कड़वी बातें मैं कहते रहता हूँ, लेकिन नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा आपसे। रात की कारगुजारी एक मौलाना ने सुना है, बात सुना, लतीफ़े में याद आ गया मुझे कि एक अमीर साहब थे, मस्जिद में बयान कर रहे थे, तो आयतें पढ़ते हैं और गलत तर्जमा करते हैं, आयत पढ़ते हैं और गलत तर्जमा करते हैं। चूँकि अनपढ़ होते हैं बेचारा आम तौर से, लेकिन उनको नहीं पढ़नी चाहिए आयत। ज़्यादा भी कहो भाई कुरान में ये आया है, मफ़हूम ये है, फलां है, आयत भी पढ़ रहे हैं और तर्जमा गलत कर रहे हैं। तो आलिम साहब ने टोक दिया, भाई आप आयतें पढ़ रहे हैं, तर्जमा गलत कर रहे हैं। एक करंट तो यहीं लग गया उसको, तो मुझे सबके सामने टोक दिया। थोड़ी देर सन्नाटे से रहा, फिर शुरू की बातचीत, फिर आयत पढ़ी, फिर गलत तर्जमा कर दिया। मौलवी साहब ने फिर टोक दिया, वो यहीं का पढ़ा हुआ मौलाना है। ऐसे 2-3 आयत उन्होंने पढ़ी, गलत तर्जमा किया, बातचीत बहरहाल पूरी हो गई। तो उसको एक दिमाग पर असर हुआ कि सबके सामने मुझे जलील कर दिया, टोक दिया, फना कर दिया। फिर बाद में कारगुजारी ली, मौलाना साहब ने आप में कितना आलिम है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। तो उन्होंने बताया कि हमारी जमात में 2 पढ़े लिखे हैं
اور جو ہمارا امیر صاحب ہے وہ مول صاحبان سے بھی زیادہ جانے، یہ سنانا مجھے، حالانکہ وہ پڑھا لکھا نہیں کچھ بھی، وہی جو غلط ترجمہ کر رہا تھا، غلط تفسیر کر رہا وہی ہوگا امیر صاحب۔ تو وہ کہنے لگا ہماری جماعت کا جو امیر ہے وہ مول صاحبان سے بھی زیادہ جانے ہے۔ قائل بھائی 27 سال ہو گئے ٹائم لگاتے لگاتے، یا ہمارے مول صاحبان سے بھی زیادہ جانے۔ ارے بھائی 27 سال نہیں 70 سال ہو جائیں تو بھی آپ مولوی صاحب سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ وہاں 6 نمبر کی مشق کر رہے ہیں، 6 نمبر پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث 6 نمبر نہیں ہے، 6 لاکھ نمبر ہیں۔ کیسے وہ ایک 27 سال لگا کے عالم سے بڑا ہو جائے گا؟ سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے باریکیوں کو سمجھا کرو۔ قرآن اور حدیث اور فقہ پر جو نظر کسی عالم کی ہے، کسی مفتی کی ہے، اس آدمی کی نہیں ہو سکتی جو چلوں میں رہتا ہے 4 مہینے لگاتا ہے۔ میں برائی نہیں کر رہا ہوں، دین پر آپ عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ عالم سے بھی زیادہ مضبوط دیندار ہوں، لیکن علم کی بات کر رہا ہوں۔ علم چلے لگانے سے نہیں آتا ہے، علم مدرسوں میں استاد کے سامنے بیٹھنے سے آتا ہے۔ آپ 70 سال بھی لگا لیں گے تو بھی آپ عالم نہیں کہلائیں گے، آپ 70 سال لگا لیں گے تو بھی آپ مفتی نہیں کہلائیں گے، تو بھی آپ فقیہ نہیں ہو سکتے، تب بھی آپ مفتی محدث نہیں ہو سکتے۔ ہاں مدرسے میں آؤ، علماء کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو، آپ 10 سال میں 20 سال میں عالم ہو جائیں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز فنکاروں سے سیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو لوہا کوٹنا سیکھنا ہے تو لوہاروں کے پاس جاؤ، اگر آپ کو سنار بننا ہے تو سناروں کے پاس جاؤ، ہے کہ نہیں بات؟ اگر آپ کو لکڑی سے کچھ آلات دروازے کھڑکی بنانا سیکھنا ہے تو جاؤ لکڑہارے کے پاس، وہ سکھائے گا آپ کو۔ اگر عالم بننا ہے تو علماء کے پاس جاؤ، علماء کے پاس بیٹھو، تفسیر سیکھو، قرآن سیکھو، ترجمہ سیکھو، تب جا کے عالم بنیں گے۔ تو ہماری مصیبت کیا ہے؟ بغیر پڑھے لکھے بھی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ 27 سال چونکہ جماعتوں میں ہو گئے، وقت لگاتے لگاتے مول صاحبان سے بھی زیادہ جانے۔ کیسے جان جائے؟ یہ حماقت دور کرو۔ علم الگ چیز ہے، عمل دوسری چیز ہے۔ ٹھیک ہے آپ عمل کرتے ہیں، ماشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، تہجد پابندی سے پڑھتے ہیں، مبارک ہو آپ کو، لیکن علم کا دعویٰ نہیں کر سکتے آپ۔ تو میں سنا رہا تھا کہ افطار روزہ رکھا، صبح صادق کے بعد سے غروب تک پابند ہے، آپ کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پیئیں گے نہیں، لیکن جیسے ہی افطار کا وقت ہو تو حکم کیا ہے؟ فوراً افطار کرو۔ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، فوراً افطار کرو، یہ بھلائی کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس سے عملاً آپ نے یہ ظاہر کیا کہ اللہ ہم محتاج ہیں، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے، تو نے منع کیا تھا اس لیے رک گئے، جیسے ہی تو نے حکم دیا ہم فوراً تیرا حکم پورا کر رہے ہیں، کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہ ہے دین، جیسا حکم ویسا کرو، جب تک روکا گیا رکا رہو، جب کہہ دیا کھاؤ تو اب کھاؤ، یہ ہے دین۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت ابو عطیہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق، یہ بھی ایک بڑے عالم ہیں اور تابعی ہیں، میں یعنی ابو عطیہ اور مسروق کوفہ سے آئے مدینہ منورہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہم نے علم حاصل کیا، پڑھنے کے لیے جاتے تھے، حضرت عائشہ پڑھاتی تھی، پردے کے ساتھ مسئلے بتاتی تھی، حدیث سناتی تھی۔ تو ان دونوں ساتھیوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک بات رکھی کہ ہم اما جان ہم کوفہ سے آئے ہیں، وہاں اصحاب رسول یعنی صحابہ کرام میں سے 2 شخصیت ہیں ممتاز، ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری جو وہاں کے گورنر ہیں، اور گورنر کا مزاج یا بادشاہ کا مزاج، وزیر کا جو مزاج ہوتا ہے اس کا اثر رعایا پر پڑتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ یہ مودی بیوقوف جیسی کوٹی پہنتا ہے، اسے ساری دنیا پہننی شروع کر دیتی ہے۔ کیوں؟ ان کے بادشاہ جو کوٹی پہن رہا ہے، صدری پہن رہا ہے، سب وہی پہنے گے۔ تو الناس علی دین ملوکہم، ہمارا تو وہ آئیڈیل نہیں، ہمارا تو وہ نمونہ نہیں، جن بیوقوفوں کا نمونہ ہے وہ کر رہے ہیں اس کی اقتدا۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل اور نمونہ محمد الرسول اللہ، صحابہ، تابعین، علماء کرام ہیں، وہ جیسا پہنتے ہیں ویسا ہم پہن لیتے ہیں، لیکن جو شوق رکھتے ہیں، جو ان کے دل دادا ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں۔ تو الناس علی دین ملوکہم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو ہمارا بڑا ہوگا، سربراہ ہوگا، چاہے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، اس کا اثر رعایا پر پڑتا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری وہاں کے گورنر ہیں، اور دوسری اہم شخصیت وہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، وہ وہاں کے معلم ہیں، استاد ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، فقہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں، وہاں کے معلم ہیں۔ اور معلم کی
यानी शख्सियत का असर पड़ता है तलबा पर, उसके पास पढ़ने वालों पर, उसके पास जाने वालों पर असर पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों का अमल अलग अलग है। अबू अतिया और मसरूक कह रहे हैं कि ये दोनों बड़ी शख्सियत हैं और दोनों ऐसी हैं कि दोनों का असर रियाया पर, तलबा पर पड़ रहा है, लेकिन दोनों का अमल मुख्तलिफ है। इसलिए हम परेशान हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं। फरमाया क्या अमल है दोनों का? कहने लगे कि उनमें से एक शख्स तो ऐसे हैं जो जल्दी इफ्तार करते हैं वक्त होते ही और जल्दी मगरिब पढ़ते हैं, जैसे टाइम हो फ़ौरन इफ्तार करेंगे, फ़ौरन मगरिब पढ़ेंगे। और दूसरे शख्स हैं वो इफ्तार में थोड़ी ताख़ीर करते हैं, जब इफ्तार में ताख़ीर होती है तो मगरिब में भी देर होती है। इसलिए कुछ लोग उनका तरीक़ा ले रहे हैं, कुछ लोग इनका तरीक़ा ले रहे हैं। कुछ लोग जल्दी इफ्तार करके जल्दी मगरिब पढ़ लेते हैं, कुछ लोग देर से ताख़ीर करके देर से मगरिब पढ़ते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इन दोनों में सही कौन है? ये सीखने के लिए आए हैं अबू अतिया और मसरूक। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तहक़ीक़ की, बताओ कौन जल्दी करता है इफ्तार करने में और कौन जल्दी मगरिब पढ़ता है? उनका हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो उस्ताद हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद जो आलिम हैं वहाँ के, उनका अमल ये है कि फ़ौरन इफ्तार करते हैं और जल्दी मगरिब पढ़ते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सनद लगा दी, मोहर लगा दी, हाकज़ा सनअ रसूलुल्लाह, जैसे अब्दुल्ला इब्न मसूद कर रहा है वही अल्लाह के नबी का तरीक़ा है। यानी हुजूर भी टाइम होते फ़ौरन इफ्तार करते थे और फ़ौरन मगरिब की जल्दी करते थे। तो इन तमाम मिसालों से नमाज की मिसालें दी, रोज़े की मिसालें मैंने आपको दी हैं, और भी सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं। और पूरा हज का जो तरीक़ा उसमें यही तालीम है कि असल दीन तस्लीम और रिज़ा का नाम है। ये दो लफ्ज़ मैंने शुरू में बोले थे, तस्लीम और रिज़ा, अपने आप को खुदा के हवाले करना, फिर उसके हुक्म पर राज़ी रहना, चाहे वो हुक्म हमारे समझ में आए या ना आए। इसी को बदल कर यूँ कह दो कि असल दीनदारी ये है कि आदमी वक्त का तकाज़ा पहचाने, क्या वक्त है इस वक्त और इस वक्त अल्लाह की क्या मंशा है, ये पहचानने वाला असल दीनदार होता है। मिसाल तौर पर आप एहतिकाफ में हैं, रमज़ान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ चल रहा है, आप मेरी तरह इधर मुँह करके बैठे हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा खेलता खेलता आया और हौज़ के पास कूद रहा है और हौज़ मस्जिद से दायरे से बाहर है, वो गिरा और उसकी जान का ख़तरा है। तो सूफी सल्लेट क्या सोचेगा, मैं अगर बाहर निकल गया तो मेरा एहतिकाफ टूटेगा, तो वो बाहर नहीं जाएगा। ये हमाकत कर रहा है, ख़ुद भी कातिल होगा, ये उस बच्चे का कातिल माना जाएगा, इसने उसको मार दिया। इस वक्त तकाज़ा ये था कि एहतिकाफ तोड़ और उसकी जान बचाए। तेरा एहतिकाफ टूटता है तो तोड़, उसकी जान को मत तोड़। समझ गए? आसान सी बात। एक हुक्म था एहतिकाफ में रहो, बाहर नहीं जाओगे, बाहर निकलते ही एहतिकाफ टूटेगा। लेकिन अब हुक्म क्या है? उसकी जान बचाना फ़र्ज़ है। अगर ये मुअतकिफ़ साहब बाहर नहीं जाता है तो ये कातिल माना जाएगा, अल्लाह के नामा आमाल में लिखा जाएगा एक खून इसने किया था। इसका नाम दीन है। वक्त का तकाज़ा पहचान। कुरान हकीम में ऐसे दर्जनों वाक़ियात हैं, दो वाक़े मेरे जहन में आ रहे हैं, सुनाओ। एक आयत 5वें पारे में है, फ़ला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। व युसल्लिमू तस्लीमा, जो लफ्ज़ तस्लीम कह रहा हूँ, वाक़या तो बहुत तवील है, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, मैं 2 मिनट में उसका खुलासा अर्ज़ करूँ। 2 साथियों का झगड़ा हुआ, उनमें से एक यहूदी है, एक बज़ाहिर मुसलमान है, जिनको हम मुनाफिक कहते हैं। देखने में मुसलमान है, देखने में सहाबी लगता है, लेकिन अंदर निफाक था, ईमान नहीं था, मुसलमानों में मिलजुल कर रहा करता था। इन दोनों का किसी ज़मीन के बारे में कोई झगड़ा हुआ। अब फ़र्क और सोच देखो, यहूदी ने कहा चलो तुम्हारा नबी के पास मुकदमा लेकर जाते हैं, वहाँ फ़ैसला करवाएंगे। यहूदी को ये मालूम है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर फ़ैसला करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि ये यहूदी है, ये मुसलमान है, वो फ़ैसला हमेशा इंसाफ के साथ ही करेंगे, मेरे हक़ में फ़ैसला आएगा। यहूद को ये उम्मीद है। और मुनाफिक भी ये बात जानता है, तो मुनाफिक कहता है नहीं नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, उमर के पास चलेंगे। क्यों? वो जानते थे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिरों के लिए बड़े सख्त हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इंसाफ़ ही करेंगे। लेकिन उस बज़ाहिर धोखे में था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शायद मेरे हक़ में फ़ैसला कर देंगे। वो नाजायज़ कब्ज़ा करना चाह रहा था। यहूद ने ज़िद की नहीं नहीं हम तो नबी के पास ही जाएंगे, वहीं फ़ैसला करवाएंगे।
बहरहाल उस मुनाफिक को, उस मुसलमान को भी झुकना पड़ा और दोनों हुजूर की खिदमत में आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकदमा सुना और यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। भाई बज़ाहिर दलाइल से ऐसा लगता है कि ज़मीन तुम्हारी है, इसकी नहीं है, और उससे कहा इसकी ज़मीन इसका हवाला करो। उनका जी ठीक है जी। मस्जिद से बाहर निकल गए और बाहर निकल कर वो मुसलमान जो बज़ाहिर मुसलमान था दरअसल मुनाफिक था, मुकर गया कि मैं नहीं मानता, हम तो हज़रत उमर के पास चलें, वहीं जाएंगे, वही टिक लगी हो जब वहीं जाएंगे। यहूदीन का कोई बात नहीं, चलो वहाँ चल देते, वो भी तो तुम्हारा नबी का तरबियत याफ्ता है, उसने भी तो यहीं से पढ़ा है, यहीं से सीखा है, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों हज़रत उमर के दरबार में पहुँच गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकदमा सुना। यहूदी ने कह दिया बीच बीच में बात करते करते कि हज़रत हमारा ये मुकदमा नबी भी सुन चुके हैं और नबी ने मेरे हक़ में ये फ़ैसला कर दिया है, लेकिन इसको ज़िद है कि आपसे फ़ैसला चाहता है, अब आप भी सुन लीजिए, आप फ़ैसला कर दीजिए। हज़रत उमर के तेवर तो यहीं बदल गए और उससे कहा मुसलमान से, सही कहता है नबी से फ़ैसला करवा के आ गए तुम? उनका जी हम करके आ गए। तो हज़रत उमर ने कहा ठहरो। अंदर गए और तलवार लाए, मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फ़ैसला न माने उसके लिए उमर का ये फ़ैसला। अब मदीने में शोर बचा कि उमर ने एक मुसलमान का कत्ल कर दिया, नाजायज़ खून कर दिया, उसके घर वाले हुजूर के पास पहुंच गए, किसास चाहिए, फलां चाहिए, एक हंगामा हो गया। जाहिर बात है कानून की दुनिया में हज़रत उमर की पकड़ होगी, क्यों कत्ल कर दिया? ठीक है, आदमी को इख्तियार है कि रसूलुल्लाह का फ़ैसला मानता है कि नहीं मानता है, कानूनी दुनिया में, शरीयत एतबार से नहीं कर रहा हूँ। अब तैयारियाँ हो रही हैं हज़रत उमर के ख़िलाफ़ फ़ैसला होने की, किसास की बात आ रही हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई, फ़ला व रब्बिक, कसम है इसमें, फ़ला व रब्बिक, तेरे रब की कसम, वो आदमी मोमिन ही नहीं हो सकता जो अपने मामलात में अल्लाह और रसूल को फ़ैसला न बनाए, फिर जो फ़ैसला वहाँ से मिल जाए उस पर राज़ी न हो, वो मोमिन ही नहीं होता। आगे वो लफ्ज़ है वयुसल्लिमु तस्लीमा, वो मोमिन ही नहीं होता जो तस्लीम करना न सीखे, जो अपना आप को अल्लाह और रसूल के सामने सरेंडर करना, अपना आप को झुका देना न सीखे, वो मुसलमान ही नहीं। तो इसी की रोशनी में कह रहा हूँ कि ईमान या दीन सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि खुदा की इताअत करना आ जाए। अब वो करने के लिए कहें करो, न करने के लिए कहें तो करो। जैसे शुरू में एक लफ्ज़ बोला मैंने, नमाज पढ़ना अगर दीन है तो कभी नमाज न पढ़ना भी दीन है, रोज़ा रखना दीन है तो कभी रोज़ा न रखना भी दीन है, कभी कुरान पढ़ना दीन है तो कभी कुरान न पढ़ना भी दीन है। अगर आप हालत जनाबत में हैं, हालत हैज़ में हैं तो कुरान नहीं पढ़ सकते, अब कुरान न पढ़ना ही दीन। तो नहीं साहब मैं तहाफ़्फ़ुज़ हूँ, बगैर गुस्ल के भी पढ़ सकता हूँ, गुनाह करे। तो कभी पढ़ना दीन है, कभी कुरान न पढ़ना दीन है। तो इन आया दूसरा एक वाक़या और सुनाना था, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। आगे चल कर आ रहा, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل ضलाला मुबीना। यह भी लंबा किस्सा है। इख्तिसार ये है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह करना चाहते थे अपने उसामा बिन ज़ैद का जो नाम ज़ैद से करना चाहते थे, लेकिन वो रंग रूप के एतबार से बहरहाल बहुत खूबसूरत नहीं थे। हज़रत ज़ैनब बहुत खूबसूरत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पेशकश रखी कि तुम इनसे निकाह करो ज़ैद से। वो आमादा नहीं हो रही हैं, तैयार नहीं हो रही हैं। तब ये आयत नाजिल हो रही है, किसी मोमिन मर्द, किसी मोमिन औरत को ये इख्तियार नहीं है कि जब अल्लाह उसका रसूल कोई फ़ैसला करे तो उससे वो मुकरे, इनकार करे। जो अल्लाह की रसूल की नाफरमानी करेगा वो सरी गुमराही में। इन आयतों में, इन वाक़यात के ज़रिए भी यही जहन बनाया गया कि असल दीन इताअत का नाम है, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। हदीस पढ़ी मैंने खुतबे में, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई आदमी पक्का कामिल मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिशात, उसका नफ्स, उसका दिल उस चीज़ के ताबे न हो जाए जिसको मैं यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आया। ये मतलब ला युमिनु अहदुकुम। मैंने जो आयत पढ़ी, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, उसमें पहला बुनियादी सबक है कि दीन किस चीज़ का नाम है? अल्लाह की इताअत का, मनशा खुदाबंदी पहचानने का, ये असल दीन है। एक बात पूरी होगी। इन आयत की रोशनी में दो और अहम बातें हमें मालूम होती हैं। बहुत मुख्तसर वक्त में वो दो बातें भी अर्ज़ कर दूँ। पहली बात तो क्या मालूम हुई कि असल दीन अल्लाह की इताअत का नाम है।
وہ جیسا جیسا کہے ویسا کرو، بس یہی دین ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کہے نماز پڑھ لی، جب منع کر دیا تو رک گئے، جب قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا پڑھ دیا، جب اس نے کہا منع تو منع ہے، روزہ رکھو رکھ لیا، نہیں کہا منع کر دیا نہیں رکھا تو دین ہے۔ تو اصل دین ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، ایک نمبر۔ ان آیات کی روشنی میں دوسرا سبق یہ ملا، وہ بھی بہت غور سے لینے کا ہے، کہ دین کی کسی ایک بات یا کسی ایک عمل، کسی ایک عبادت یا چند عبادتوں کے انجام دینے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا۔ ایک بات، یہ دو بات، یہ تین باتوں پر عمل کرتا ہے اور دین کی اکثر باتیں چھوٹ رہی ہیں، تو اس طرح کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا۔ مکمل دین پر عمل کرنا ہے تب دیندار ہوتا ہے۔ دین بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن خلاصہ کرتے ہیں علماء، عقائد جن کو ہم ایمانیات کہتے ہیں، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، خرید فروخت، لینا دینا، ہبہ، یہ جو کچھ ہوتے ہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، آپس میں میل جول کے ساتھ رہتے ہیں، رشتے ناتے رہتے ہیں، ان کو نبھانا۔ آخری چیز ہے اخلاق۔ ان 5 چیزوں کا نام مکمل دین ہے۔ اگر کوئی آدمی عبادت کا بڑا پابند ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اشراق، اواب سب کر رہا ہے، لیکن معاملات خراب ہیں، کسی کا لے کے واپس نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ دیندار نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ایک عنوان یاد رکھنا، دین کی ایک یا چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی دیندار نہیں بنتا، مکمل احکام پر عمل کرنے والا دیندار بنتا ہے۔ آج کل کے جو دیندار ہیں وہ یہی ہیں، جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، دین کا بڑا حصہ چھوڑے بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم دیندار ہیں۔ کسی نے نماز شروع کر دی، کوئی حج کر کے آ گیا، کسی نے چلے 4 مہینے لگا دیے ہیں، کوئی خانقاہوں سے وابستہ ہو گیا، ذکر فکر شروع کر دیا، اب دھوکہ لگا دیندار بن گیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی کوئی دین تھوڑی ہے، اور دین کے بہت کام ہیں، دین کے اور بھی بہت کام ہیں۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ ایمانیات ہے، پھر عقائد، پھر آگے چل کر اعمال کا بیان ہے، عبادات کا بیان ہے، معاملات کا بیان ہے۔ وقت نہیں ورنہ ایک ایک جملہ اس کا تشریح کے قابل ہے آیت کا۔ تو آیت نے ہمیں دوسرا سبق دیا کہ چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی دیندار نہیں ہوتا، سب باتوں پر عمل کرنے والا دیندار ہے۔ اب کوئی داڑھی کٹائے بیٹھے ہوا دیندار نہیں ہے، کسی کے معاملات صاف نہیں ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، جہیز لیتا ہے، میراث نہیں دے رہا، گھر میں پردہ نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، دھوکے مت رہنا۔ ہاں نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے تو نمازی ہے، تبلیغ میں آتا جاتا ہے تبلیغی ہے، کتابیں پڑھتا پڑھاتا مولانا صاحب ہے، لیکن دیندار نہیں۔ دیندار کب بنے گا؟ جب سب باتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے گا، اخلاق بھی درست، معاملات بھی درست، عبادات بھی درست، عقائد بھی درست، اب آدمی دیندار کہلائے۔ ہمارے یہاں تو بس نماز کا کوئی پابند ہو گیا بڑا دیندار ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں نماز کی اہمیت کا، نماز کی اہمیت بہت ہے اسلام میں، لیکن صرف نماز پڑھ لینے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا، نہیں بنتا، یاد رکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی کسی معاملے میں شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے پہنچ گئے، کوئی مقدمہ رہا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ اور قاضی کسی شاہد کی، گواہ کی گواہی اس وقت قبول کرتا ہے جب وہ شاہد کو پہچانتا ہو، یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا دین کیسا ہے، یہ عادل ہے کہ نہیں ہے، جبھی تو قبول کرے گا۔ کسی فاسق کی، کسی کافر کی، بددین کی شہادت تھوڑی قبول کی جائے گی۔ اب حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ تم کوئی ایسا آدمی لے کر آؤ جو تمہیں پہچانتا ہو، جو تمہارے بارے میں شہادت دے کہ یہ عادل ہے، دیندار آدمی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دے گا، تب میں تیری گواہی سنوں گا، جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو وہ گیا، ایک آدمی کو بلا کر لایا جو گواہ کے بارے میں گواہی دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ان کی شہادت دینا ہے؟ جی ہاں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں تم سے چند سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کیا تم اس کے پڑوسی ہو، کہ اس کے مدخل اور مخرج کو جانتے ہو؟ مدخل مانے دروازہ، مخرج مانے نکلنے کی جگہ، یعنی ان کے آنے جانے سے واقف ہو، کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس سے واقف ہو؟ ان کہا جی یہ تو مجھے معلوم نہیں۔
اچھا، کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے جس سفر میں آدمی کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے؟ کبھی تم نے سفر کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہ جی میں نے سفر بھی نہیں کیا۔ اچھا، کبھی لین دین کیا ہے اس کے ساتھ؟ کوئی چیز بیچی ہو، کبھی کوئی خریدی ہو، کوئی ادھار مانگا ہو، کچھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے جن معاملات سے دیکھ کر آدمی کی دیانت کا اندازہ ہوتا ہے؟ ان کا جی یہ کام بھی میں نے نہیں کیا۔ تو حضرت نے فرمایا پھر تو نے اس کو مسجد میں کھڑا ہوا دیکھا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی سر اوپر اٹھاتا ہے، کبھی نیچے کرتا ہے۔ جی ہاں میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں دیندار۔ فرمایا اذهب فلست تعرفه، اذهب فلست تعرف، جاؤ جاؤ تم اس کو نہیں پہچانو، جاؤ۔ نماز دیکھ کے کوئی پہچانا جاتا آدمی؟ منع کر دیا، حضرت نے گواہی قبول نہیں کی کہ ہوگا نمازی ہوگا، پڑھتا ہوگا تہجد اور اشراق، دعائیں بھی مانگتا ہوگا، قرآن بھی پڑھتا ہوگا، لیکن صرف مسجد کے ماحول کو دیکھ کر کسی کی شہادت کو عددن قبول نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے معاملات بھی ٹھیک نہ ہوں، جب تک اس کے اخلاق ٹھیک نہ ہوں، دیانت ٹھیک نہ ہو۔ یہ سب چیزیں پرکھی حضرت عمر نے کہ اگر تو ان کی گواہی دیتا ہو تو میں اس کی شہادت قبول کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی ایک دو چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا۔ جب دیندار نہیں ہے تو اس کی شہادت بھی قبول نہیں۔ اور دیندار کب بنے گا؟ جب پورا دین پر عمل کرے۔ دین میں سے دو تین باتوں پر عمل کر لے تو کون کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور شروع ہوا، تاریخی قصہ بھی لمبا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ارتداد کی ایک لہر پھیلی۔ کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، باتوں کو مانیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ نمازی بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور لوگوں کی تشکیل ہوئی، چلو ان کے خلاف جہاد کرنا، فلاں فلاں قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آڑے آگے، وہ تو حق پر جمنے والے تھے، کہنے لگے آپ ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو، وہ مسلمان ہے، اس کا قتل جائز نہیں ہے، اور آپ ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ حدیثوں میں محفوظ ہے، فرمایا اگر وہ نبی کے زمانے میں اونٹ کے پاؤں باندھنے کی رسی بیت المال میں بطور زکوٰۃ بھیجتے تھے، اگر اس کو بھی وہ مجھ سے روک لیں گے تو خدا کی قسم میں ان سے جہاد کروں گا۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، معمولی، پاؤں میں جو رسی باندھی جاتی اونٹ کی، اگر حضور کے زمانے میں اس کو بھی وہ زکوٰۃ کے طور پر بیت المال بھیجتے تھے اور آپ دینے سے انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، میں منع نہیں روک سکا، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ اور پھر بڑے سخت لہجے میں فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جبار فی الجاہلیت، عمر جاہلیت کے زمانے میں بڑا پہلوان تھا، بزدل ہو گیا اسلام میں آ کر۔ ان جملوں کا ایسا اثر پڑا کہ حضرت عمر کے دل سے غبار ہٹ گیا اور شرح صدر ہو گیا، ان کا بالکل آپ جہاد کر سکتے ہیں، آپ حق پر ہیں، دل کھول دیا اللہ تعالیٰ نے جملوں سے۔ اور پھر فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے قد انقطع الوحی وتم الدین، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی وحی نہیں اترے گی، جبرائیل نہیں آئیں گے، دین مکمل ہو گیا، مہر لگ چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی کی جائے اور میں ابو بکر زندہ رہوں، ممکن نہیں۔ یہ تاریخی جملے اسی وقت ہیں کہ اگر ایک زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کرے گا کوئی آدمی اور دین کے سارے کاموں کر رہا ہے تب بھی وہ دیندار ہے، ایک حکم چھوٹ رہا ہے۔ اس روشنی سے مجھے یہ سمجھانا ہے۔ تو دوسرا قانون، ان آیات سے بات معلوم ہوئی کہ مکمل تقاضوں کو پورا کرنے والا دیندار ہوتا ہے، چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں ہوتا۔ آپ لوگ خانقاہ میں آ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تو سمجھ کر جائیے کہ دین کے تمام حکموں کو پورا کرنے سے ہی آپ دیندار بنیں گے، صرف 13 تسبیح پڑھنے سے آپ دیندار نہیں بنیں گے۔ 13 تسبیح سے ثواب ملے گا آپ کو، 13 تسبیح پڑھنے سے انوارات مل جائیں گے آپ کو، لیکن اللہ کے یہاں رجسٹر میں آپ دیندار جب ہی لکھے جائیں گے جب اخلاق، معاملات، معاشرات، عقائد، عبادات سب پورے طور پر ادا کریں گے، تب جا کے دیندار ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق۔ ان آیات کی روشنی میں 3 سبق ملتے ہیں، 2 آپ کے سامنے آ گئے۔ پہلا سبق کیا ملا کہ دین صرف
क़िबला मशरिक़ और मगरिब की तरफ रुख करने का नाम नहीं है। असल दीन क्या है? अल्लाह की इताअत। दूसरा सबक क्या मिला? चंद बातों पर अमल करने से दीनदार नहीं, मुकम्मल बातों पर अमल करो तो दीनदार। आखिरी सबक, आखिरी हिदायत जो इन आयात से हमें मिल रही है, और टाइम भी इंशाल्लाह पूरा हो ही जा रहा है। आखिरी सबक ये मिल रहा है कि अगर कोई मुसलमान या मुसलमानों की कोई जमात किसी ख़ास अमल पर जमी हुई है और उसके नज़दीक उसकी ख़ास अहमियत है और उसको वो काम करती है, तो उसको किसी दूसरी तहरीक या दूसरे दीनी काम को हक़ीर समझना, उसकी नफ़ी करना सख्त नाइंसाफ़ी की बात है। इसको थोड़ा और नरम करो। एक मकतब फ़िक्र है, एक तबका है जो तबलीग से जुड़ा हुआ है, एक तबका है जो मदरसे से जुड़ा हुआ है, एक तबका है जो मकातिब से जुड़ा हुआ है, एक तबका है जो जमीयत से जुड़ा हुआ है। अब जमीयत वालों के नज़दीक जमीयत का काम अहम है, तबलीग वालों के नज़दीक तबलीग का काम अहम है, मदरसा वालों के नज़दीक मदरसे का काम अहम है। इसको कह रहा हूँ, अगर उम्मत का कोई तबका दीन के एक ख़ास अमल से जुड़ा हुआ है और उस अमल की उसके नज़दीक ज़्यादा अहमियत है, ज़्यादा ज़रूरत है, तो ठीक है। लेकिन दूसरों की नफ़ी करना, दूसरों के बारे में ये कहना कि ये भी कोई दीन का काम है, अल्लाह की कसम सख्त नाइंसाफ़ी है और कभी ये चीज़ कुफ्र तक पहुँचाती। अच्छी तरह सुन कर जान, कभी कभी ये बात काफिर बना देती। क्यों? जो और काम हो रहे हैं वो भी तो दीन के हैं। जब आपने कहा ये भी कोई दीन का काम है, तो आपने दीन की नफ़ी कर दी, आप काफिर हो गए। दीनदारी को धोखा लगाए बैठे हो, काफिर हो जाएंगे आप। दीन का इनकार कर रहे हैं। मदरसा पढ़ाना भी कोई दीन का काम? जब कुरान पढ़ना पढ़ाना दीन का नाम नहीं है तो किस चीज़ का नाम है फिर? तुमने कुरान की तालीम की तौहीन की, आप अपने ईमान की खैर बनाए। अरे यार, ये जमात में जाना और दावत और तबलीग का काम करना, ये भी कोई दीन है? अरे दावत देना दीन नहीं तो और क्या दीन है? तुमने नफ़ी कर दी, ईमान की खैर बनाओ। अरे मकतब पढ़ाना भी कोई दीन का काम है? तुमने दीन की तौहीन की है, अपने ईमान की खैर बनाओ। ये जब सोचता हूँ तो मेरे रूंगटे खड़े होते हैं और एक हदीस अच्छी तरह समझ में आती है। नबी ने इरशाद फरमाया, आखिरी दौर में ऐसा होगा कि मस्जिद लोगों से भरी हुई होगी, नमाज़ पढ़ने आए होंगे, लेकिन उनमें से एक भी मुमिन नहीं होगा। नमाज़ पढ़ना है और एक भी मुमिन नहीं होगा। ये कब होगा? जब एक दूसरे की नफ़ी करेंगे। अरे ये भी कोई दीन में यार, ये भी कोई दीन का काम कर रहा है, तो उसकी नफ़ी करके खुद हम काफिर हो गए। तो जब ये सोचता हूँ तो ये हदीस फ़ौरन दिमाग में आती है। कैसे कैसे हो सकता है आदमी मुमिन है, नमाज़ पढ़ना आ रहा है, तिलावत कर रहा है, और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मस्जिद भरी हुई होगी, मुसलमानों से नमाज़ पढ़ना आए होंगे, एक भी उनमें मुमिन नहीं होगा। इस तरह से कि वो एक दूसरे की नफ़ी कर रहे हों, कुरान के हुक्म का इनकार कर रहे हों। तज़किया यानी खानकाहों में जो मेहनत होती है, ये कुरान का सबक है। तालीम किताब जो मदरसों में होता है, ये कुरान का हुक्म है। दावत जो तबलीग में होता है, ये भी कुरान का हुक्म है। समझ रहे हैं? खानका में क्या होता है? तज़किया नफ्स। दावत और तबलीग, दावत का काम हो रहा है। मदरसों में तालीम का काम हो रहा है। दारुल इफ्ता में तालीम का काम हो रहा है। ये सब कुरान का ही हुक्म है, जो कुरान से साबित है। अगर आप यूँ कहते हैं मदरसे का कोई काम है, तो कुरान के एक हुक्म का इनकार कर दिया आपने, काफिर हो जाएंगे। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आपको एक काम से उनसियत है, मानूसियत है, उसी से आप दिलचस्पी रखते हैं, तो उसको करिए, आपको इख्तियार है। दूसरे काम के लिए आप फारिग नहीं हो सकते, कोई जुर्म नहीं कर रहे आप, लेकिन दूसरे की तहकीर, दूसरे की नफ़ी करना, ये अपने ईमान को ख़त्म करना है। ये यहूदियत है, ये नसरानियत है। वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै वहुम यतलूनल किताब। वक़ालतिल यहूद, यहूद ने कहा कि नसारा कोई दीन पर नहीं, नसारा ने कहा कि यहूद का भी कोई दीन होता है। अल्लाह ताज्जुब से फरमा रहे हैं, हालांकि ये दोनों कुरान आसमानी किताब पढ़ने वाले लोग हैं। यहूद के पास तौरात मौजूद है, नसारा के पास इंजील मौजूद है। तौरात में इंजील का तज़किरा है, इंजील में तौरात का तज़किरा मौजूद है। एक दूसरे के अहकाम बयान किए गए हैं, मुश्तरक हैं, और फिर भी एक दूसरे की नफ़ी कर रहे हैं। वो भी अहले किताब, ये भी अहले किताब। ऐसे ही मुसलमानों सुनो, हम सब कुरान वाले हैं। उस कुरान में तालीम का तज़किरा भी है, उस कुरान में तज़किया का भी तज़किरा है, उस कुरान में दावत का भी तज़किरा है। अब अगर दावत वाले खानका की नफ़ी करते हैं तो कुरान का हुक्म ठुकरा रहे हैं, खानका वाले अगर दावत का इनकार करते हैं तो भी कुरान का हुक्म ठुकरा रहे हैं। वहुम यतलूनल किताब, सब कुरान पढ़ने वाले हैं और फिर कुरान के एक एक हुक्म को मना कर रहे हैं। काफिर नहीं हो तब क्या होना? ये क्यों कह रहा हूँ? ये आयत हमें सिखा रही है। जब यहूद के बारे में
ऊपर तस्किरा इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही लैसल बिर्रा, मैंने पढ़ी, उससे पहले ये मज़मून है। यहूद की कुछ बुराइयों का तस्किरा कुरान ने किया, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। तो यहूद ने कहा हम जहन्नमी कैसे हो सकते हैं, हम तो मशरिक़ की तरफ मुँह कर पड़ते हैं, हमारा तो क़िबला फ़लाँ है, हम तो ये खैर का काम भी करते हैं, फ़लाँ भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं। तब ये आयत नाजिल हो रही है कि करते हो लेकिन एक दूसरे की नफ़ी भी तो कर रहे हो, इस नफ़ी की वजह से तुम काफिर हो गए हो, तुम्हारे दीन का ही कोई एतबार नहीं, ईमानियत तुम्हारा मुकम्मल नहीं। उस पर मंजर में आयत उतर रही है। उसी की रोशनी में आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह के लिए अपने जहनों में गुंजाइश पैदा करो। मैं और इलाक़ों के बारे में नहीं कह सकता, पता नहीं क्या हाल है, मैं अपने इलाके के बारे में कह रहा हूँ कि दीनदारों को शैतान ने इस वार से मारा है कि वो एक दीन से जब वाबस्ता, एक तरीक़े से वाबस्ता हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे तरीक़ों को हक़ीर समझने लगते हैं। हज़रत मौलाना करीम साहब दामत बरकातुहुम एक जुमला फरमाया करते हैं कि दीन के काम करने वालों का रफ़ीक बनो, फ़रीक न बनो। बहुत माना खेज जुमला है। रफ़ीक बनो, सहारा बनो, दोस्त बनो, उनकी वाह वाह करने वाले बनो, फ़रीक मत बनो, मुखालिफ मत बनो। हम मुखालिफ बन जाते हैं, मदरसे वाले दावत वालों को अहमियत नहीं दे रहे, दावत वाले मदरसे वालों को अहमियत नहीं दे रहे, और दोनों मिलकर खानका वालों को अहमियत नहीं दे रहे हैं। क्या हो गया है? ये कुरान के ही तो हुक्म है सब। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यही चीज़ बयान की गई। अल्लाह के नबी को दुनिया में भेजा गया है किस लिए? कि वो कुरान की आयत लोगों को पढ़ कर दिखाएँ। तो मकतब में यही काम होता है, मदरसे में यही काम होता है। और नबी का दूसरा काम है तालीम किताब और हिकमा, तफसीर सिखाएँ, एक एक राज, एक एक हुक्म खोलें। मदरसे में यही काम हो रहा है। वही ज़क्कीहिम, दूसरा काम उनका ये है कि वो लोगों के नुफूस को पाक करें शिर्क से, निफाक से, बिदअत से, गुनाहों से। खानकों में यही काम हो रहा है। और दावत यह नबी का मिशन है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक। तो तीनों काम रसूलुल्लाह की जिम्मेदारियाँ थी और रसूलुल्लाह ने उम्मत में उन कामों को फैलाया है। रसूलुल्लाह अकेला इतने बाहिम्मत थे कि सारे काम अकेले करते थे। अब कोई ऐसा बाकमाल नहीं है जो सब कामों को एक साथ लेकर चल जाए। हो अल्लाह के यहाँ तो खैर कमी नहीं है, किसी को भी ऐसी सलाहियत दे। इसलिए अल्लाह ने तबके बना दिए कि एक तबका वो है जो तालीम का काम कर ले, एक तबका वो है जो दावत का काम कर ले, एक तबका वो है जो तज़किया का काम कर ले। इसलिए एक दूसरे के दोस्त बनो, तारीफ़ करने वाले बनो, खैर खाही करने वाले बनो, नफ़ी करने वाले, तहक़ीर करने वाले न बनो, अपने दिलों को कुशा दो। ये आयत मैंने पढ़ी और मेरा जो मुतय्यन वक्त है 1 घंटे का मुफ्ती साहब ने ऐलान किया वो पूरा हो गया है। तो पूरे बयान का खुलासा सिर्फ 3 बातें जहन में लेकर जाना है। नंबर 1 क्या है कि दीन नाम है तस्लीम व रिज़ा का, अपने आप को खुदा के हवाले करना, उसके फ़ैसले पर राज़ी रहना, जिस वक्त उसका जो हुक्म है उसको बजा लाना असल दीन है। जब नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया नमाज़ पढ़ ली, यही दीन है। जब उसने मना कर दिया नहीं पढ़नी है तो न पढ़ना ही दीन है। अपने शौक़ पूरा करने का नाम दीन नहीं, मामूलात को पूरा करने का नाम दीन नहीं। वक्त का तकाज़ा पहचानो कि इस वक्त अल्लाह क्या चाहता है, बस उस चाहत को पूरा करना दीन है। मैंने बहुत तफसील से इसको मिसालें दे देकर आपको समझाया। इन आयात से दूसरा सबक मिला कि एक या चंद बातों पर अमल करने से कोई आदमी दीनदार नहीं बनता है। अपने अक़ाइद, इबादत, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक सबको दुरुस्त करने वाला दीनदार बनता है। आजकल के दीनदार बस ऐसे ही हैं कि किसी ने नमाज दुरुस्त कर ली, किसी ने रोज़े रखने शुरू कर दिए, मामलात ख़राब हैं, लेके वापस नहीं करते हैं, ख़रीद फ़रोख्त ध्यान से नहीं कर रहे हैं, सूद का लेन देन कर रहे हैं, जहेज़ लेना देना कर रहे हैं, ये दीनदार नहीं। और तीसरा सबक इन आयात से ये मिला कि जिस काम से आप वाबस्ता रहिए, शौक़ से वाबस्ता रहिए, लेकिन दीन के दूसरे कामों की तहक़ीर मत कीजिए। दावत वाले मदरसों की नफ़ी न करें, मदरसे वाले दावत की नफ़ी न करें, और दूसरे लोग खानकाहों की नफ़ी न करें। ये सब अल्लाह के हुक्म हैं, दीन के ही तकाज़े पूरा कर रहे हैं। इन सब के साथी बनो, फ़रीक न बनो, इनका ताउन करने वाले बनो। अपने काम से वाबस्ता रहो, पूरा वक्त वहीं लगाओ, कभी कभी इनके साथ भी जुड़ जाया करो। उनमें भी दीनदार लोग हैं, इधर भी दीनदार लोग हैं। अब तो शैतान का हमला ये हो गया, एक ही तबके में अगर तकसीम हो जाती है तो एक दूसरे का इकराम भी ख़त्म हो जाता है। ये शूरा वाले हैं, ये निज़ामुद्दीन वाले हैं। अरे अल्लाह के बंदो, मुसलमान तो वो भी हैं, ये भी हैं। हमारे 6 नंबर में पहले नंबर भी इकराम मुस्लिम भी तो है। क्या तुम उनको इस्लाम से खारिज कर दोगे? ये कैसी छोटी सोच है। शख्सियत परस्ती इस्लाम में नहीं। ध्यान से सुन लेना, यही लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब के रोशनी में चंद जुमले कह रहा हूँ, सुन लेना। इस्लाम में सिमत परस्ती नहीं है, क़िबला, मशरिक़, मग़रिब ये चीज़ नहीं, अल्लाह का हुक्म असल।
اسلام میں سمت پرستی نہیں ہے، اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے، اسلام میں نفس پرستی اور خود پرستی نہیں ہے، اسلام میں صرف خدا پرستی ہے۔ جملے یاد کر کے جانا، اسلام میں کیا ہے، کہو اسلام میں، اور کہو نا اسلام میں سمت پرستی نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہ مشرق میں کچھ رکھا ہے نہ مغرب میں کچھ رکھا ہے، اصل تو اللہ کے حکم میں رکھا ہے۔ وہ مغرب کی طرف منہ کرنے کہہ دے ادھر منہ کر لو، وہ مشرق کی طرف منہ کرنے کہہ دے ادھر منہ کر لو، وہی دین بن گئے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں سمت پرستی میں کچھ نہیں رکھا، شخصیت پرستی میں کچھ نہیں رکھا، نفس پرستی اپنے من کے مطابق چلنا اس میں کچھ نہیں رکھا، خود پرستی اپنی مان کر چلنا اس میں کچھ نہیں رکھا۔ اسلام میں صرف خدا پرستی ہے، خدا کی مانو، وہ جو کہے اس کو کرو، یہی سارا دین ہے۔ ان 3 جملوں میں پورا خلاصہ میں نے اپنا بیان کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں اور سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب